Welcome all of you. Now we were studying the practical number 5 or performing the practical number 5. Find the phase difference between the voltage and current on CRO for resistive and inductive and capacitive circuit. Part 2. In part 1, we find out the phase difference between the RL series circuit. That means resistance and inductances are connected in series. And after that we take the readings. दीज आर द रीडिंग वे आर टेकन इन प्रीवियस प्रैक्टिकल। अतः इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, तो आपको पेज रेफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, वो सी आर ओ पे देखना है। बट यहाँ पे हम सी आर ओ यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इन सी आर ओ वी कैन नॉट ऐड द करंट वेवफॉर्म, ओनली वी सी इन द वोल्टेज वेवफॉर्म। सो हियर वी कैन नॉट यूज द सी आर ओ। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन by using the voltage and current we calculate the phase difference, that means phi. So calculation of यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको फाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम फाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। कॉस फाई मीन्स पावर फैक्टर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर एंड जेड we can calculate r is equal to vr upon I. vr means v1 voltage, sorry v2 voltage, v2 divided by I, हमें r मिलेगा। एक्सेल के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या, z के कैलकुलेशन के लिए हमें z का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हमारे पास r हमने कैलकुलेशन कर दिया है, अब हमको z कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाय आई। From this formula we can get the value of XL. Then we can calculate Z is equal to R square plus XL square. After that we calculate the phi. Phi is equal to cos inverse of R upon Z. So that you calculate the phi for each reading. Okay, this is our practical number 4. In practical number 4, R and L are connected in series. But in practical number 5, we connect a capacitor in series with the resistance. Instead of this inductance, we only replace inductance by capacitance. Okay, so all the connections are same, only replace the capacitors. Okay, see here in connection diagram हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चोक कॉइल है उसको हटा के हम यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो उसे कनेक्ट कर देंगे। बस यही करना है 5th नंबर प्रैक्टिकल में। ऑल कनेक्शंस आर सेम एज द प्रीवियस प्रैक्टिकल नंबर 4। सो now your information, once again we check the connection as per the circuit diagram. That means this is phase wire which is connected to the dimmer. Phase and neutral is connected to the dimmer. Dimmer means it is used for the voltage variation. हमने जो रीडिंग लिया है वो कैसे लिया है, वोल्टेज वेरिएबल करके। जो डिमर यूज़ कर रहे हैं एट ट्रांसफार्मर, ये हमारा एट ट्रांसफार्मर है। इसके किसके लिए यूज़ किया है, हमने जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका वोल्टेज वेरी करने के लिए यूज़ करा है, मतलब वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया है। ओके, जो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है यहाँ पे डिमर को। आफ्टर डिमर we connect the ammeter in series with the dimmer, and ammeter connection is connected to the resistor. This is our dimmer phase terminal connected to the ammeter common terminal, and 1 ampere terminal of ammeter is connected to the resistor first terminal. Okay, after resistor first terminal, second terminal of resistor is connected to the capacitor, and capacitor second terminal is connected to the dimmer neutral terminal. See here, resistor second terminal is connected to the capacitor, and capacitor second terminal is directly connected to the dimmer. Okay, this is our connection is completed for the series diagram. So for checking the voltage, we connect a V1 voltmeter across the dimmer. Okay, then ये जो डिमर वोल्टमीटर रहेगा V1 वो सप्लाई वोल्टेज
को रीडिंग देगा इसके सप्लाई वोल्टेज की. आफ्टर दैट फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी कनेक्ट V2 voltmeter and for voltage across capacitor we connect parallelly voltmeter V3. Okay, see here voltmeter V1 which is measure the supply voltage or output of the dimmer. This is our supply voltage. Okay, next V1 readings. Next for V2 reading we connect this voltmeter in parallel with the rheostat. Okay, this rheostat we connect at 150 वोल्ट टर्मिनल. ओके, ये जो पैरेलल कॉमन और 150 वोल्ट के टर्मिनल है हमने इस रेओस्टैट के पैरेलल में कनेक्ट किया है. ये V2 वोल्टेज मेजर करेगा और वोल्टेज अक्रॉस रेओस्टैट मेजर करेगा. लास्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विच इज मेजर्ड बाय दिस V3 वोल्टमीटर. ओके, मतलब V1, V2 and V3, these are three readings, that means supply voltage, voltage across resistance and voltage across capacitor, and last current through this all series circuit. This is measured by this ammeter. See the rating, this is connected to the 300 volt, this is connected to the 150 volt and this is also connected to the 300 volt. Okay, now we give the supply to the this experimental setup. Before we given to this circuit, before given to the supply to this circuit, we check the dimmer as in 0 position. Okay, now we start the switch. Okay, now we gradually first increasing the voltage to the rated voltage. Rated means 230 volt. See here all the meters are varying as per the voltage. This is V3, this is ammeter reading, this is voltage across resistance and this is voltage across capacitor. Okay, now we take the reading. As per previous case, we taken the reading at V1 140 volt, 160 volt, 180 volt और 200 वोल्ट. अब ये जो रीडिंग है वो हम आर्बिट्रली कौन सा भी रीडिंग ले सकते हैं. मतलब आपको चाहिए तो 100 से शुरू कर सकते हैं और 200 से भी शुरू कर सकते हैं, पर हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है 140, 160, 180 एंड 200 को सेट करना है और उसके बाद हमें रीडिंग लेना है. ये आपको ये एडजस्ट कर दो, वरना आपको ये जो रेओस्टैट है ये रेओस्टैट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं. बट हमने यहाँ क्या किया है रेओस्टैट को फिक्स्ड रखा है और वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को हम वेरी कर देंगे, V1 वोल्टेज वेरी कर देंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट रीडिंग इज एट 140 वोल्ट. सो वी रिड्यूस द वोल्टेज एट 140 वोल्ट. ओके, this is 140 volt. We set that. Next we take the reading of current I. This is 1 ampere reading, so that we take the below scale. Here is 0.3, 0.35, reading is 0.37 ampere. So current reading is 0.37 ampere. Next voltage across rheostat V2, हमने इसे 150 को कनेक्ट कर दिया. दैट मीन्स मिरर रीडिंग वी आर टेकन 82 वोल्ट. एंड लास्ट इज V3 रीडिंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 100. वन लाइन कितना की है 5 वोल्ट की है, तो यहाँ पे के 4 लाइन्स हो गए और 20 आ गया. दैट मीन्स 120 वोल्ट रीडिंग आएगा हमारा. तो V3 का 120 वोल्ट. नेक्स्ट जो रीडिंग है वो हमने 160 वोल्ट को लेना है हमें. So we can increase the voltage. So here we set the voltage at 160 volt. Next current reading 0.4 के बाद 2 लाइन्स हैं, दैट मीन्स 0.42 हो गया रीडिंग. सेकंड रीडिंग इज 0.42 एम्पियर. वोल्टेज 90 और 100 के बीच में 10 लाइन्स हैं और ये थर्ड लाइन में रीडिंग आ गया है हमारा. सो इसका रीडिंग होगा 93 वोल्ट. V2 रीडिंग. नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1, 2, 3.
दैट मीन्स टोटल 8 लाइन पर आ गया। सो कितनी 140 हो गया इसका रीडिंग हमारा, एक लाइन 5 के और 8 के बीच में आ गए। इसका रीडिंग क्या हो गया 8 इंटू 5 दैट मीन्स 40, 140 रीडिंग आएगा हमारा। नेक्स्ट रीडिंग फॉर द 180 वोल्ट। ओके, हमने इसे सेट कर दिया है 180 पे। आफ्टर दैट वी टेक द करंट रीडिंग 0.4, 0.45। ये 7वीं लाइन पे है, इसका मतलब क्या है, इसका रीडिंग कितना होगा 0.47 एम्पियर। वोल्टेज करो रेजिस्टेंस, ये 4th लाइन पे है, 100 से 4th लाइन मतलब 104 वोल्ट। V2 रीडिंग 104 वोल्ट। लास्ट इज 150 के बाद 1 लाइन है, दैट मीन्स 155 वोल्ट। ओके, नाउ our last reading is at 200 volt। हमने इसे 200 वोल्ट पे सेट कर दिया है। आफ्टर दैट वी टेक द करंट रीडिंग 0.5 के बाद 3 लाइन से, मतलब इसका क्या हो गया रीडिंग 0.53। V2 8 लाइन से यहाँ पर 110 के बाद, तो इसका रीडिंग क्या हो गया 118 वोल्ट। एंड लास्ट VC, ये थोड़ा इस लाइन के 5 नंबर के लाइन से थोड़ा पीछे है, इसका रीडिंग क्या हो गया, सो इसका रीडिंग हम 155 वोल्ट ही कंसिडर करते हैं, सॉरी 175 वोल्ट कंसिडर करते हैं इसका रीडिंग हम। सो हियर वी टेकन द ऑल द रीडिंग्स रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेशन एग्जैक्टली क्या करना है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या होता है, फेज एंगल। फेज एंगल किस में होता है, वोल्टेज और करंट में। हमारी जो वेवफॉर्म है, इसी वेवफॉर्म एक कैपेसिटी उसी की सर्किट वेवफॉर्म क्या आएगी, ये आगे लीडिंग पे आएगी, करंट लीडिंग होगा और वोल्टेज लैगिंग होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस फाई कैलकुलेट करना है। और फाई कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, cos फाई इज इक्वल टू R/Z, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। और फाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ R/Z, एग्जैक्टली फाई का ये फॉर्मूला। कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर के फॉर्मूले पर से हमने क्या किया है, फॉर्मूला ये यूज़ करके हमने फाई का फॉर्मूला डेवलप किया है। फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ R/Z, R इज इक्वल टू VR/I। दैट मीन्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V2/I। V2 रीडिंग लेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट XC के लिए V3/I भी लिख सकते हैं हम। ओके, यहाँ से हमें फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर एवरी एंड ईच रीडिंग। ओके, हियर आवर प्रैक्टिकल इज कंप्लीटेड।